वोट चोर बीजेपी गद्दी चोर, वोट चोर बीजेपी गद्दी चोर। अरे देश भर में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है, लड़ेगा। अरे देश भर में अरे वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वोट चोर गद्दी चोर, बिना गोल नहीं, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर बीजेपी, और बीजेपी दूर रहो, वोट चोर बीजेपी गद्दी छोड़ो, वोट चोर बीजेपी गद्दी छोड़ो, अरे गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, अरे बीजेपी गद्दी छोड़ो, अरे वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी लड़ेगा, अरे वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी लड़ेगा। अरे विरोधी सांसद के गिरफ्तार करो, होला बीजेपी, अरे विरोधी सांसद होला बीजेपी, जवाब चाहिए, जवाब। अरे विरोधी सांसद के गिरफ्तार करो, होला बीजेपी। बंद करो, बीजेपी जवाब, राहुल गांधी नेतृत्व वंदे मातरम, संविधान बचावा लड़ाई, राहुल गांधी नेतृत्व कि आज हमारा नेता राहुल जी, जिन्होंने वोट का चोरी को पकड़ा है, आज इलेक्शन कमीशन के पास जब जा रहे थे दिल्ली में चलकर, तो हमारे नेता राहुल गांधी के साथ साथ हमारी नेत्री प्रियंका गांधी, साथ में हमारे तमाम एमपी और विरोधी के एमपी को जिस तरीके से पुलिस ने जेल में डाला था सुबह, हम लोग उसी के गुस्से में यहाँ पे जीटी रोड पर आकर नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन का पुतला को जलाया है। अब देश की जनता होशियार हो चुकी है। बीजेपी वाले को मैं यहाँ से होशियार कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चोरी आपका पकड़ाया है, अब सिर्फ लड़ाई कांग्रेस पार्टी या सिर्फ लड़ाई अब देश में विरोधी दल का नहीं हो गया है किसी पार्टी का, बल्कि आम जनता का लड़ाई है। क्योंकि आम जनता का जिस तरीके से आप लोगों ने उनका अधिकार को छीनने का कोशिश किया और छीना भी है और चोरी करके आपके प्रधानमंत्री बने हैं, तो बीजेपी वाले होशियार हो जाइए। अब देश की जनता आपको दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली है। जुड़े होच्छे এই প্রতিবাদের কারণ হচ্ছে গত 7 তারিখে আমাদের নেতা লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধীজি হাতে কলমে প্রমাণ দিয়ে নরেন্দ্র মোদী 2024-এর নির্বাচন জেতা প্রমাণ দেখিয়ে দিয়েছে যে আজকে চুরির বলে নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আছে। আর এই কাজে তাকে সহযোগিতা করছে ভারতবর্ষের ইলেকশন কমিশনার গণেশ কুমার। বিহারে এসআইআর-এর নামে 65 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যে করার পরিকল্পনা। এরা চাইছে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক যে মানুষের অধিকার, একজন মানুষের একটা ভোটের অধিকার, রাহুলজি প্রমাণ দেখিয়েছে একটা কামরাতে 80 জন ভোটারের নাম। রাহুলজি প্রমাণ দেখিয়েছে একের পর এক বুথে একই মানুষের নাম, বেনারস থেকে শুরু করে লখনৌ থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে ব্যাঙ্গালোর। রাহুলজি প্রমাণ দিয়ে দিয়েছে উনি চেয়েছিলেন ডিজিটাল ফরম্যাটে ভোটার লিস্ট, দেয়নি। সেই ভোটার লিস্টের জায়গায় দেওয়া হয়েছে মানে হার্ড কপিতে মিলিয়ে 6 মাসে একটা মাত্র পাওয়া গেছে ব্যাঙ্গালোর দক্ষিণ। সেখানে মহাদেবপুরা বিধানসভাতে 1,250,টা ভোট গড়বড় করে বিজেপি লোকসভা জিতেছে। আপনারা যদি জানেন একটা নতুন লোকসভার নাম বলি, যেটা হচ্ছে জয়পুর গ্রামীণ, 1615 ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী অনিল চোপড়া হেরেছে। সেখানে 6টা বিধানসভায় কংগ্রেস লিড পেয়েছে, আর একটা বিধানসভায় বিজেপি 3,500 ভোটে লিড পাওয়ার পর একটা বিধানসভাতে বিজেপি 90,000-এর লিড নিয়ে 1650 ভোটে জিতেছে। আজকে বিরোধী দলের 300 জন এমপি ইলেকশন কমিশনারের কাছে যাচ্ছিল তাদের স্মারকলিপি দিতে, তারা কথা বলতে।
ইলেকশন কমিশন ভয় পাচ্ছে রাহুল গান্ধীজিদের মোকাবেলা করতে। বিরোধী এমপিরা তারা কেউ চোর ডাকাত নয়। যে বিজেপি চোর ডাকাত ঢুকিয়ে আতঙ্কবাদীদেরকে ভারতবর্ষে ঢুকিয়ে আমাদের দেশের নাগরিকদেরকে হত্যা করাচ্ছে তারা নয়। তারা এক একজন নির্বাচিত সাংসদ, তাদের অধিকার আছে। তারা সংবিধান হাতে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা আজকে পথ অবরোধ করেছি এবং বিজেপির এই যে এক ভোট, একজন মানুষের একটাই ভোটের অধিকার, তার প্রতিবাদে আমরা তার যে সমর্থন, যে তাদেরকে আটক করা হয়েছে, তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে অকারণে, তার প্রতিবাদে আমরা আজকে এখানে রাস্তা অবরোধ করেছি। আমরা কুশপুতুল জ্বালালাম ইলেকশন কমিশনার এবং নরেন্দ্র মোদীর, কারণ এরা মিলে ভগতে দেশের সংবিধানকে শেষ করতে চাইছে। আমরা আজকে সংবিধান বাঁচাবার লড়াই রাহুল গান্ধীজি कमिश्नर नरेंद्र मोदी के जो पुतला दहन किए, ये जमहूरियत के खिलाफ में जो जमहूरियत को कुचलना चाहता है, हम लोग उसका आज पुतला दहन किए। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पोल खोल करके दिखा दिया कि जो देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री है वो चोरी किया हुआ वोट का प्रधानमंत्री है, हम लोग उसको चोरी प्रधानमंत्री को देश स्वीकार नहीं करता है। इसी के प्रतिवाद में आज हम लोग बैठे हैं। जब जब देश में इलेक्शन कमीशन से सवाल किया जाता है तब तक सामने में आकर करके बीजेपी और उसका प्रवक्ता लोग जवाब देता है। इसे साफ समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उसी का प्रतिवाद में जब राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है ना, तो आज उसको कुचलने के लिए अरेस्ट करने का काम किया है। तमाम अपोजिशन के सांसद के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया गया है। हम लोग का सवाल है कि जब देश में अंग्रेजी शासन था तो इस तरीके से जिस तरीके से तानाशाही के देश चला रहा है, ये तानाशाही से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा आइन से चलेगा, जमहूरियत से चलेगा। बस हम लोग इसी के लिए आज हम लोग नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन दोनों भाई भाई का पुतला जला करके हम लोग ये बताए हैं कि देश में तानाशाह का हुकूमत खत्म होने वाला है।